Hi, good morning. Good morning, ma'am. Very good morning. Very good morning to Good everyone. morning to all. Good morning. Good morning, ma'am. Very good Good morning. morning. And thank you for Good making my morning, day ma'am. as today and I think the whole week. Thank you so much. You deserve that. Good morning, ma'am. So today the person who's going to read for us is Bitti ji. आपका birthday भी है आज. Yes, it's Bitti's birthday. Wish you a very happy birthday. Wish you a very, very happy Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And Unmute it's नहीं कर पा amazing रही थी. life. I mean, this has to be, like stamped as the best year of your life. So every time you have to upscale your best definition, like every year henceforth. So this will be the best year ever, a year that you've never seen before. And next time, of course, you have to raise your own bar and you have to have the next best year. And life will never be the same again, as Hadaway's song. Life will never be the same again. Life is changing, right? I love that Tony Robbins Thank you song. so much for your blessings. Thank you. God bless you with the best health, lots of money, happiness, and may you get younger day by day. Thank you. मैम आज प्रिया के दोनों बेटों का भी बर्थडे है. Priya, Priya Taneja. Taneja के तो Nehra. Oh, Priya, really? Nehra. Oh, she never told. She's been conversing with me on WhatsApp. हाँ नहीं उन्होंने मुझे बताया था. मेरी उनसे बात हो रही थी. वो मैंने बर्थडे का बाई चांस बताया. बोलते रीडिंग की बात चल रही थी तो मैंने कहा कि मैं आई वांट टू स्टार्ट माय डे विद अ मैजिक. दोनों बेटों की तो वैसे ही जिंदगी. अब प्रिया इतना ज्यादा मतलब शी इज सो डीप डाउन इनटू ग्रैटिट्यूड, टू द कोर, दैट आई एम वेरी श्योर दैट her both her boys will make the whole country proud, in every way. Yes. I mean, like they definitely are going to do that. I'm very, very sure. So she writes such amazing affirmations and blessings for her children that, all mamas do. Of course, all mamas do. Mothers are amazing. And I'm sure that both Priya's children, Nehra kids, they will be called and they'll make the country. Archit and Arpit, ma'am. Huh? Archit and Arpit. Archit and Arpit. Yes, ma'am. Will definitely have. They are on an escalation right now. Health wise, happiness wise, physical, mental, emotional health, as I say. How old are they, Priya? Sir, they are 18 plus. Now they're 18 today. They'll be 19 today, 7:30 p.m. So this is the last teen birthday, which you should actually celebrate very pompously. After that, they'll not be teenagers anymore, right? Yeah. Congratulations, Priya. Thank you, ma'am. Thank you so much. Congratulations, Priya ji. Thank you. आपकी blessings के लिए आपका message भी सबसे पहले आया मुझे. Thank you. And looks like it's a celebration month, this time. Yes, ma'am. July is like celebration month for all, like for me, it's like lots of people. आज इवन गौतम अदानी जी के यहाँ पे अनुराधा जी का भी बर्थडे है. अनु कौन? हमारी अनु? गौतम अदानी हैं, गौतम अदानी जी, उनके यहाँ पे अनुराधा जी हैं, उनका बर्थडे है आज. अच्छा, वो तो पता नहीं है. मैं तो जो सामने लाइव लोग हैं उनको बोल रही हूँ. like so it's really beautiful. हुआ है ना, तो इसलिए बताया मैंने. Oh, अच्छा, great, very good. उन्होंने इस द्वारका में काफी स्पॉन्सरशिप दी है आज के लिए कि पूरा दिन हरिनाम संकीर्तन चलेगा और प्रसाद मिलेगा. Oh, great. Go and enjoy. Yeah, I know. Okay, so we'll start on a very celebratory note and we'll have the birthday girl read for us. In fact, we have both the birthday girls. One is Arpit and Archit's mama and Bitti, both reading for us today. So today is the birthday readings. So day 28, remember the magic. We are on the last phase, the last lag and the last chapter. And this is a forever assignment. आज वाला जो assignment है ये अब हमको रोज जिंदगी भर के लिए करना है. Because it is remember that you have magic and you have to carry this magic with you. आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और इसलिए इसमें एक रास्ता दिखा हुआ है. ये आगे की जर्नी है, हमारी जिंदगी की जर्नी है जिसमें आसपास बहुत अंधेरा है. ठीक है, और अंधेरा ये आता रहेगा हमारी जिंदगी में, है ना. लेकिन हमको सिर्फ उजाले पे चलना है.
तो ये जो लाइट पेव्ड है, ये पाथवे जो बना हुआ है, इसी के ऊपर चलना है हमको, एंड देयर इज स्पार्कल्स एंड दिस मैजिक ऑल अराउंड, और उसको कैप्चर करते रहना है। वही सारा मैजिक है जो हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, अपना रास्ता खुद बनाया है, अपना रास्ता हमको खुद चुनना है। ह्यूमन बीइंग्स में ये कैपेसिटी होती है दैट दे कैन चूज, राइट? सो दे हैव चोजन टू वॉक ऑन दिस पाथवे। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, कितनी भी कठिनाई चल रही है, कितना भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, अगर आप अपने रास्ता खुद चुनते हो और इसी रास्ते पे चलते हो तो जिंदगी कभी भी वैसी नहीं, मतलब मैंने देखा है ग्रैटिट्यूड का पावर, लेकिन ग्रैटिट्यूड के पावर के साथ साथ पेशेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो वो एज आई ऑलवेज से कि दरवाजे पे यूनिवर्स लेके खड़े हुए हैं, हाँ, आपकी जो ड्रीम लाइफ थी या जो भी चीज आपने मांगी थी, लेकिन उसके लिए आपकी ग्रैटिट्यूड की कॉन्टिन्यूड फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है। और इस तरह के टेस्ट एग्जाम सब में पास होते रहो बस, ठीक है? ग्रैटिट्यूड के साथ ही पास होना है, उस और क्वेश्चन पेपर में और कोई आंसर नहीं है थैंक यू के अलावा, ठीक है? सो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी, हेल्थ चैलेंजेस सडनली आ जाएंगे, आपको लगेगा मैं तो इतना ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है, मैं क्यों बीमार, मेरे साथ ऐसे कैसे नुकसान हो गया बिजनेस का। नहीं, दैट इज ओनली योर टेस्ट। जब भी जिंदगी में बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला होता है, उसके पहले आपका एक एग्जाम होता है, जैसे आम जिंदगी में होता है। हर क्लास के पहले एक एग्जाम देना पड़ता है हमको, 5th के पहले, 6th के पहले, फिर 7th ग्रेड के पहले, 9th ग्रेड के पहले, 12th ग्रेड के पहले हमको एक एग्जाम देना पड़ता है। तो ये छोटे मोटे एग्जाम चलते रहेंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा, आपका वे ऑफ लाइफ ग्रेटिट्यूड है, तो पता भी नहीं लगता है कि एग्जाम है, बस ये लगता है कि बस ये फेज आया और चला गया। सो इसलिए पेशेंस भी बहुत जरूरी होती है। कभी कभी 1 महीने का एग्जाम होता है, कभी कभी 15 दिन का एग्जाम होता है, कभी कभी 1 वीक का एग्जाम होता है, ठीक है? बट मेरी ये वाली बात आप याद रखना, पेशेंस एंड इज ऑलवेज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इल्यूमिनेटेड। ओके, सो इट जस्ट दैट समटाइम्स वही, और बहुत लंबा नहीं चलेगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड में होते हो तो बहुत डीपली आप थैंक यू वर्ल्ड में रहते हो, ठीक है? बहुत लंबा नहीं चलेगा आपका एग्जाम, जस्ट वेट फॉर इट एंड इट विल सून पास। ओके, इट इज दैट ब्यूटिफुल। सो हम पढ़ते हैं ये वाला चैप्टर। हाँ जी बिट्टी जी पढ़िए। Day 28. Remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lint, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now and what your desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from the friend who you haven't heard from in a long time? Did you something go magnificently well for you? Did you receive great phone call?
or email did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve the problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and the list yesterday's blessings on computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday's until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different, but I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Whosoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has be or will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Second, remember the magic by count the blessings of yesterday, writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Third, as you remember each one, simply say magic words, thank you, for it in your mind. Fourth, after today, you can do this practice as a written list and out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter or more detailed list and say why you are grateful for them. Fifth, just remember you go to sleep tonight, hold your magic rock in your one hand and say magic words, thank you for the best things that happened during the day. Thank you ma'am. so Thank much, the birthday girl, for reading for us. Thank you so much. Thank you. So this remember the magic का मतलब है अब हमारे पास, क्योंकि obviously जब आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हो तो आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है ना, अब पढ़ाई भी थोड़ी और डिफिकल्ट होती जाती है ना, सिलेबस लंबा होता जाता है और कंटेंट बढ़ता जाता है कोर्स का, तो उसी तरीके से अब हम काउंट माय ब्लेसिंग्स तो करते ही रहेंगे,
10 हमको काउंट माई ब्लेसिंग्स करनी है, और अगर आपको टाइम मिलता है, बिकॉज हमारे लिए ये बुक नेवर एंड्स, क्योंकि अभी जब तक ग्रैटिट्यूड हमारे एक एक सेल में सैचुरेट नहीं हो जाएगा तब तक वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस बुक, बिकॉज जिंदगी इसी किताब की वजह से चेंज होती है। जो बाकी किताबें हम इसके साथ पढ़ते हैं, दे आर जस्ट गिविंग अस अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स किस तरह से काम करते हैं टुगेदर, ठीक है। लेकिन पहली वाली जो बुक है मैजिक बुक, जिंदगी इसी की वजह से बदलती है। कितनी भी आप किताबें पढ़ लो, जब तक आप ड्वेल करके असाइनमेंट्स नहीं करते हो एक जगह बैठ के, और जब तक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में एक नए तरीके का पैटर्न नहीं बनता है थैंक यू का, तब तक लाइफ चेंज नहीं होती है। ओके, तो पेशेंटली हमको इसके साथ बढ़ना है। तो जब आप भी, मैं आपको पढ़ने के पहले भी बता रही थी, तो मुझे एक वो बहुत क्लियर एक छोटी स्टोरी है जो एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी है, दैट आई जस्ट वांट टू शेयर। मैंने कहाँ मैंने टेरी सेविल की बुक में पढ़ी थी, इमेजिन बिग, या किसी में इमेजिन बिग थी, टेरी सेविल की जो बुक थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि देयर वाज दिस गाय, यू नो, ये भी उसका टेस्ट हो रहा था एक्चुअली। सो ये बंदा था वेरी हैंडसम सोल्जर, वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट खत्म हुआ था, एंड ही जस्ट वेंट वन डे इन द इवनिंग टू अ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में उसने एक किताब उठाई पढ़ने के लिए, एंड देन ही सॉ दैट उसमें पीछे ऑथर के बारे में लिखा होता है सब कुछ, ठीक है, ऑथर का वो था, और उनका ईमेल आईडी भी था, ठीक है। तो उन्होंने ऑथर की ईमेल आईडी पे, उनको वो किताब बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने ऑथर की ईमेल आईडी पे मतलब मेल भेजी उस टाइम, और फिर उनको फटाक से जवाब आ गया, ठीक है। और जब अब उनको फोन नंबर चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई वुड लाइक टू हैव योर फोन नंबर, और वो मोस्टली लैंडलाइन फोन्स का जमाना था, तो उनको फोन नंबर भी उस ऑथर ने दे दिया, ठीक है। और दोनों बात करने लगे, और उसकी आवाज इतनी अच्छी थी, प्यारी सी, और यू नो फोटो देखी थी उसने, तो वो मतलब इतनी क्लियर नहीं थी, ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट जैसी, तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था, पर उसको ये पता लग गया था कि कोई गुड लुकिंग सी फीमेल है। तो दोनों 10 महीने तक बात करते रहे एक दूसरे से फोन के ऊपर रोज, एंड दे स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद ईच अदर, ओके, क्योंकि दोनों को दे एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप, एक ईस्ट कोस्ट में था अमेरिका में, दूसरी वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। तो वो चलता गया, फिर फाइनली दिस पर्सन सेड दैट आई वांट टू मीट यू। सो उसने कहा कि ठीक है, तो उसने कहा नहीं, अब वैसे भी आई एम कमिंग टू दैट प्लेस, तो उसने कहा ठीक है, जब आप आओगे, सो यू नो व्हेन यू गेट डाउन द शिप, आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द कोस्ट, एंड तो उसने कहा एंड आई विल बी वेयरिंग पिंक फ्लावर इन माय हेयर, उससे आप आइडेंटिफाई कर लेना कि वो मैं हूँ। तो उसने कहा ठीक है, और बहुत क्यूट सी उनकी रिलेशनशिप थी, अच्छी सी। सो फाइनली जब वो वहां पे अपने शिप से उतरे, तो he just walked ahead, और जैसे ही वो बाहर गए, he saw this gorgeous female, you know, like who actually took his breath away. उन्होंने देखा इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, और यू नो बस वो खुश हो गए कि चलो ये है वो जिससे वो इतने टाइम से बात कर रहे थे, एंड शी इज द वुमेन ही लव्ड। और फिर वहां गए, बट इतना उसके मतलब उस मेस्मराइज हो गए थे उसको देख के, दैट ही फॉरगॉट दैट देखना कि उसके बाल में पिंक फ्लावर था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बहुत डिजेक्टेड होके वो आगे चलते रहे, और वहां पे एक यू नो ओल्डिश सी फीमेल थी, मतलब नॉट वेरी ओल्ड, ओल्डिश सी फीमेल थी, और उनको यू नो लाइक शी वाज वेयरिंग अ पिंक फ्लावर, okay, so he went there, and he told her that hi, my name is this and this, and you know like would you like to come, because ये इन्होंने decide कर लिया था that they'll go for a dinner together, okay, on the first day when they meet. So उसको जाके, and he was being a very gentleman, है ना, even if she was an old female, he just went and he told her that can I take you out for a dinner, you know, because उन्होंने पिंक फ्लावर पहना हुआ था, और उनको पता लग गया यही वो फीमेल थी जिससे वो इतने टाइम से बात कर रहे थे। तो वो फीमेल कहती है आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग, मतलब इस पर्सन को बोलती हैं वो जो ओल्ड फीमेल थी, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर, what's going on, because there was just a pretty young lady who had come to me, और वो अपने बाल से अपना पिंक फ्लावर उतार के मेरे बाल में लगा के गई, और बोल के गई कि just see if somebody is asking you for dinner or not. ओके, सो एक्चुअली वो जो फीमेल मिली थी उसको बहुत सुंदर गॉर्जियस सी, वही वो फीमेल थी, और वो इसका कैरेक्टर टेस्ट करना चाहती थी कि क्या ये मेरी एज देख के और मेरी सुंदरता देख के मेस्मराइज्ड है, कि एक्चुअली बाय हार्ट ये बहुत अच्छा इंसान है,
ठीक है. सो जब उसको पता लगा, उसने उस फीमेल को डिनर के लिए बुलाया था. तो फाइनली शी केम बैक एंड शी सेड दैट ओके आई हैड गिवन दिस फ्लावर एंड फिर वो जो फीमेल थी वो फाइनली दे वेंट आउट फॉर डिनर टुगेदर, है ना. तो कितनी शार्प फीमेल थी. शी जस्ट वांटेड टू सी दैट वाज दिस गाय ओनली यू नो लाइक ये उसको इसलिए पसंद कर रहा था क्योंकि वो सुंदर थी या उसकी फोन पे आवाज बहुत अच्छी लग रही थी, कि वो एक्चुअली दिल से अच्छा इंसान है और उसको दिल से प्यार करेगा कि नहीं, है ना. ये उसका टेस्ट था और ऑफ कोर्स वो उसमें पास हुआ, क्योंकि फिर बाद में फाइनली वो उस फीमेल को भी जो दूसरी वाली थी उनको उन्होंने कहा था कि लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर, कैन आई टेक यू आउट फॉर डिनर, और बहुत अच्छे से, you know. So that is how universe sometimes tests us. So there's always a beautiful female, as in the huge victory and success waiting for us. But कभी कभी हमको अपना वो टेस्ट क्लियर करना पड़ता है या पेशेंस रखना पड़ता है. तो अपना जो आपके प्रिंसिपल्स हैं या जो आपके लीनिंग ऑन ग्रेटिट्यूड इज व्हाट वी कॉल इट, उससे बिल्कुल हिलो मत. ये बहुत जरूरी होता है. ठीक है. बहुत आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप गिर जाओ अपने रास्ते से. बहुत ऐसी कोई बोल देगा और ताकि आपका रिएक्शन बाहर निकले इस तरह से. लेकिन वेल आई मीन लाइक इफ यू रियली आर वेरी वेरी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग, वी विल सी दैट हमारी वो मतलब द विक्ट्री इज अश्योर्ड. मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, दोज एपिफनी मोमेंट्स, दे विल कीप हैपनिंग इन योर लाइफ एंड बी ऑन द रोल एंड एंजॉय इट. ठीक है. तो इसी तरीके से the story I told you only to let you know that these are little tests that will keep happening, because हम last chapter पे concluding chapter पे हैं. तो ये सब होता रहेगा. और जितना ज्यादा आप gratitude में deep dive करोगे ना, उतनी ही force से कभी कभी resistance आता है हमारी जिंदगी में. बट कभी डरना मत. ठीक है. वो बस एक वो होता है दैट वो गिरने वाला वो टेस्ट. उसके बाद बहुत कहते हैं ना बम्पी रोड्स आते हैं और उसके बाद इतना स्मूथ हाईवे होता है दैट विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन. तो बस उस बम्पी रोड को लुढ़कते फुड़कते किसी तरह पार कर ही लेना, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस बुक ऑल्सो. और इसमें की पॉइंट्स यही है बेसिकली कि अब याद रखना कि रिमेंबर द मैजिक इज कि रोज एक तो हम काउंट माय ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, उसके साथ में हमको जो कल क्या क्या हुआ हमारे, जो हम रात में मैजिक रॉक में करते हैं ना, वो हमको चीजें याद करनी है. और ये बहुत अच्छे से असाइनमेंट करना होता है. जब कभी मानो अगर आप काउंट माय ब्लेसिंग्स कर रहे हो तो वो करते रहो, क्योंकि हम तो बुक का एंड कभी करते ही नहीं है ना. सो लेकिन काउंट माय ब्लेसिंग्स के साथ साथ में आप कल वाली चीजें भी कभी लिखो जब आपको टाइम है. जैसे वीकेंड्स में टाइम होता है ना, तो कल क्या क्या हुआ था. और बहुत पूछो, सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छा लगता है सवाल. सो कीप आस्किंग क्वेश्चन that how can my day be beautiful today, what can I do that makes my day super productive, or what should I write the book on, what more can I do, how can I make this party very very happening and happy, how can I do this, how can I enjoy my evening today. And you will see that आपको इतने बढ़िया hunches आते हैं या inspirations आते हैं ना, आपको लगेगा ये कैसे हो गया. But that is how the law operates. People अपने आप से बात करते नहीं है ना, लोग अपने साथ रहते नहीं है, तो अंदर की आवाज उनको सुनाई पड़ती नहीं है, क्योंकि इतना नॉइजी दिमाग होता है पूरे टाइम. सो इसलिए spend time with yourself, ask yourself that how can I become more successful. So to subconscious mind अंदर से पूछो that how can I earn more money, like how can I, what should I do that can make me a billionaire, or whatever it is that you want to do. Okay, so ask yourself that. So इसमें हमें कल के बारे में, आज के बारे में, कि कल के बारे में पूछो कि और क्या हुआ, और कल क्या हुआ था, किसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, अच्छा और क्या हुआ था, ओ कल मेरी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा लग रहा था, और क्या था कल, ओ दैट दिस पर्सन, कल मैंने बहुत बहुत बढ़िया कॉफी पी के मजा आ गया. सो इस और क्या हुआ था, और आपको जवाब मिलते रहेंगे. ठीक है. एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड इन दीज प्रैक्टिसेस. सो ये रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस कहलाती है, जो आप कल के बारे में बार बार पूछ के लिख रहे हो. अच्छा कल ये हुआ था, सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट yesterday my house was filled with flowers. Okay, what else happened? Oh, I'm so grateful that Bharti cooked such a tasty shahi paneer yesterday, which was so nice. Okay, और क्या हुआ था, और हुआ था कि when I went to office, like
आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, जिसकी वजह से मैंने इतनी सारी कल किताबें पढ़ी और इतने सारे वीडियोस सुने, और क्या हुआ था और ये हुआ था। तो इवन इफ इट देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक और मुझे जाने में 2.5 घंटा लगा, मैंने तो उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज किया ना। आई मीन लाइक सारी वो चीजें की, क्योंकि नहीं तो ऐसे टाइम ही नहीं मिलता। सो इट वाज सो गुड। या फिर मैं दूसरी तरफ ये बोलती कि ओ गॉड इतना ट्रैफिक, ये वो, इतना टाइम लग गया जाने पे। नो, आई मीन लाइक when you have joy in your life it can come from anywhere, और जो नेगेटिव चीज है वो भी आपको सुनहरी दिखने लग जाती है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रैक्टिस। सो रिमेंबर द मैजिक में अब ये वाली जो प्रैक्टिस है, जब कभी मर्जी काउंट माय ब्लेसिंग्स के अलावा, जब आपके पास टाइम है, अगर आप इसको 5 भी करते हो तो ठीक है, इसका कोई सेट नंबर नहीं दिया हुआ है ना। यू कैन डू इट 5, यू कैन डू इट 10, यू कैन डू इट 20, यू कैन डू इट 30, इस तरह से आप करते जाओ। बट काउंट माय ब्लेसिंग्स, कंटिन्यू डूइंग इट, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट रिटन इन दिस। ये चैप्टर उस हिसाब से लिखा हुआ है कि अब ये लास्ट चैप्टर और इसके बाद अब हम असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। उस इसलिए लिखा हुआ है कि अब काउंट माय ब्लेसिंग्स तो करो कंटिन्यू। नहीं, हमारा काउंट माय मतलब ये रिमेंबर द मैजिक हमको कंटिन्यू, बट हम क्योंकि बुक दोबारा से शुरू करेंगे, सो वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर एंड द प्रैक्टिस, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली योर लाइफ विल स्टार्ट अनफोल्डिंग इन एवरी वे। और अभी तक अगर हमने 28 चैप्टर्स हैं तो हमने बहुत सारे असाइनमेंट्स कर लिए हैं ना। हमने काउंट माय ब्लेसिंग्स 280 तो मिनिमम लिख ही ली होगी, अगर आप 10 भी लिखते हो तो, ठीक है। तो इसमें अपने आप से इस तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं। क्या आपको कल अच्छी न्यूज मिली? क्या आपका कोई डिजायर अकम्प्लिश हुआ? क्या आपने अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव किया? Did you feel very happy yesterday? Did you hear from a friend you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? क्या आपको कोई अच्छी फोन कॉल या ईमेल आई? क्या आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया या फिर अपना अप्रिसिएशन एक्सप्रेस किया? क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी आपने? क्या आप किसी की मदद कर पाए? क्या आपका कोई प्रोजेक्ट फिनिश हुआ जिसके बारे में आप बहुत खुश हुए? क्या आपने अपना फेवरेट फूड खाया कुछ कल? या आपने कोई मूवी देखी? क्या आपको कोई गिफ्ट मिला? क्या कोई प्रॉब्लम कोई सिचुएशन रिजॉल्व हुई? क्या आपकी कल कोई मीटिंग थी जो बहुत अच्छी हुई? क्या आपने किसी के साथ क्वालिटी टाइम बिताया? किसी के साथ बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन हुआ? या कोई प्लान किया आपको अबाउट समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू? तो इस तरह से हमको और अपने आप से पूछते जाना है और ये देखना है कि क्या क्या अच्छा हुआ कल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, तो इसमें है जब आप कल की चीजें, कल के ब्लेसिंग्स याद करते हो, इट शुड बिकम एफर्टलेस। और वो ना जितना ज्यादा और पूछोगे वो बबल की तरह ऊपर आती रहेंगी। जैसे फिज होता है ना ड्रिंक्स में, वो फिज हमेशा बबल्स उसमें नीचे से ऊपर आते रहते हैं, उस तरह से ही ऊपर आते रहेंगे। एंड दैट इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। और जितना ज्यादा कहते हैं कि जितना दिमाग पे जब जोर लगाते हैं ना, उतने ही आपके नए ब्रेन के सेल्स और बनते हैं, ठीक है। तो आपका दिमाग यूथफुल रहेगा हमेशा। जैसे कहते हैं ना, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी मेमोरी थोड़ी कम होती जाती है। पहले की टीचिंग्स होती थी है कि उम्र के साथ साथ थोड़ा दिमाग कम हो जाता है, हम रिपीटेटिव हो जाते हैं, हम बहुत रिजिड हो जाते हैं चीजों को लेके। ऐसा नहीं होता है, आपके लगातार ब्रेन सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है, इन द ब्रेन, प्रोवाइडेड आप अपने दिमाग को बहुत यूज करो, यूटिलाइज करो, ठीक है। सो यूज इट मोर एंड मोर. So these days, whenever people use a lot of chat GPT, I think the younger crowd, I think even people like us, use a lot of chat GPT. मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि ये तो बिल्कुल दिमाग ऐसे फिर redundant हो जाएगा, इसलिए ऐसे कॉपी पेस्ट और रेडीमेड चीजें मत लो, दिमाग पे जोर लगाओ। तो जब भी मैं कोई किताब लिखती हूँ तो there's some of my team members, the younger crowd, अरे ये कंटेंट है, मैंने कहा no, let me put जोर on my दिमाग। तो इसीलिए दिमाग पे जोर लगाते रहो। जितनी बार आप दिमाग पे जोर लगाओगे उतनी बार आपके हिप्पोकैम्पस एरिया में नए ब्रेन सेल्स बनेंगे, न्यूरॉन्स बनेंगे, और आपका दिमाग पहले से भी शार्प होता जाएगा। आप यूथ में जैसा दिमाग था उससे भी शार्प होता जाएगा, मेमोरी और बेटर हो जाएगी, क्रिएटिविटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है, हार्मोनल बैलेंस होने लग जाएगा। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है अगर हम दिमाग पे जोर लगाएं, मतलब ये साइंटिफिकली आज मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली थिंक मोर अबाउट द गुड थिंग्स। अब ये बहुत जरूरी है कि दिमाग पे जोर लगा के आप निकाल क्या रहे हो, खींच खींच के आप सारी अच्छी चीजें निकाल रहे हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, और उसको आप ग्रैटिट्यूड में भिगा रहे हो बहुत अच्छे से,
फिर आप उनको खींच खींच के निकाल रहे हो, उससे आपकी पूरी सेहत पे फर्क पड़ेगा। सिर्फ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ नहीं, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारी प्रैक्टिस है आज की, और आगे आगे हमेशा के लिए, है ना। और सुबह देखो काउंट माय ब्लेसिंग्स है, ये कंटिन्यू रहेगा अब हमारा। तो अब आप एमएससी से जब पीएचडी लेवल पे आते हो तो आप बहुत ही सेल्फ रिलायंट होते जाते हो। तो क्या हम सेल्फ रिलायंट हो गए? आप अपने आप से पूछो, क्या हमको पता है कि कोई अब सिचुएशन हमारी जिंदगी में आएगी तो हमको उसको पलटना कैसे है ना। सो ये हमको अब सेल्फ रिलायंट होना है, हमें पता होना चाहिए दैट दिस इज व्हाट आई नीड टू डू नाउ। ओके, एंड हर बार जब आप वो रिमेम्बर द मैजिक का कोई भी ऐसा वो निकालोगे दैट ओके कल आई हैड अ वेरी टेस्टी वेरी नाइस फ्रॉथी कॉफी, आई रियली लव्ड हैविंग इट। ठीक है, सिंपली से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, उसके साथ उसको चिपकू बना लो हर सेंटेंस के साथ। वैसे भी हर सेंटेंस के साथ थैंक यू को चिपकू बना लो, जस्ट गेट इट ग्लूड टू व्हाटएवर यू आर सेइंग। ओके, जैसे अगर कुछ कर भी रहे हो, अच्छा चलो मेरा ये काम हो गया, थैंक यू। ओके, क्या बढ़िया मैं घर पहुंच गई फर्स्ट क्लास सेफ एंड साउंड, यू नो, थैंक यू कार एंड थैंक यू टू माय ड्राइविंग स्किल एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल रोड्स। ओके, थैंक यू। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू से। तो थैंक यू को हर सेंटेंस से चिपको बना लो, एंड देन यू सी दैट इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है 580 बहुत ज्यादा होती है वो, है ना। और दैट्स अबाउट इट। और खूब आउट लाउड थैंक यू वर्ड को यूज करना सीखो। दिस इज समथिंग, दिस इज वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न, बिकॉज आपके पांचों सेंसेस एक्टिवेट होते हैं जब आप जोर से थैंक यू बोलते हो। ठीक है, आपकी स्किन में वाइब्रेशन आते हैं क्योंकि वॉइस में वाइब्रेशंस होते हैं, माइंड में डेफिनेटली होते हैं। अगर आप मन में बोलते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप वॉइस अगर आवाज निकाल के बोलते हो आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, सो आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, आपके कान उसको सुन रहे हैं, आपका मुंह पूरा इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग आपकी टंग। ठीक है, सेंसेशन फ्रीक्वेंसी ही अलग होती है, आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है उस सेंसेशन को। ठीक है, तो इतनी पावर होती है अगर आप आउट लाउड बोलते हो, जोर से थैंक यू बोलते हो। तो जब भी आपको मौका मिले, अगर आप मैजिक वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो जब वॉक पे जा रहे हो ग्रैटिट्यूड वॉक, उसमें आप थैंक यू करो, जोर से बोलने की कोशिश करो। कई बार बहुत लोग नहीं होते हैं आसपास तो कर दो। ठीक है, सो इस तरह जब भी वाइजली आप इसको यूज करो। इट्स नॉट, लोग पीपल शुड नॉट थिंक दैट अपने आप से ही बातें करती रहती है जोर जोर से, बट जब भी आपको मौका मिले, अगर आप 24 घंटे में 2 मिनट भी थैंक यू वर्ड जोर से बोलते हो, उससे भी आपके सेलुलर लेवल पे बहुत ज्यादा मैसिव चेंजेस आने शुरू होंगे। ठीक है, सो अब हम वील रैप अप दिस चैप्टर, और कल से हम योर मैजिकल फ्यूचर कंक्लूडिंग चैप्टर्स पढ़ेंगे जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे भी ये शुरू के जो है ना डे 0 और ये डे 29 ऑनवर्ड्स, ये बड़े मजेदार चैप्टर्स होते हैं, मतलब बहुत ही इंजॉयबल। सो एनी हाउ जब भी कोई चीज इंजॉय करो तो उसका इफेक्ट भी बहुत फास्ट होता है ना, तो इंजॉय करेंगे इस बुक को। अब हम चलते हैं दूसरी बुक पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे अर्पित और अर्जुन की मम्मी पढ़ेंगी आज, क्योंकि उनका हैप्पी बर्थडे है Yes, और वो ma'am. ब्लेस किड्स हैं। सो हम एक फ्रेश नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रिश्तों के बारे में, किस तरह से आपके रिश्ते सारे के सारे हारमोनियस हो। ठीक है, क्योंकि रिश्ते बहुत अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, तो इसलिए हम रिश्तों को ही बदल देते हैं ताकि उसके आसपास सब कुछ वाइब्रेशन एनर्जी सब चेंज हो जाए। So yeah, this is chapter number 16. Hanji Priya. Chapter number 16, Your Subconscious Mind and Harmonious Human Relations. In studying this book, you learn that your subconscious mind is a recording machine which faithfully reproduces whatever you impress upon it. This is one of the reasons for the application of the golden rule in human relations. Matt, page 1712 words, says as, all things whatsoever ye would that men should do unto you, do ye even so to them. This quotation has outer and inner meanings. You are interested in its inner meaning from the standpoint of your subconscious mind, which is, as you would that men should think you about them in like manner. As you would that men should feel about you,
feel you always about them in like manner, as you would want men to act toward you. Act you toward that men, act you toward them in like manner. For example, you may be polite and courteous to someone in your office, but when his back is turned, you are very critical and resentful toward him in your mind. Such negative thoughts are highly destructive to you. It is like taking poison. You are actually taking mental poisons which rob you of vitality, enthusiasm, strength, guidance, and goodwill. These negative thoughts and emotions sink down into your subconscious and cause all kinds of difficulties and maladies in your life. बहुत ही मतलब पूरे चैप्टर की मुझे लग रहा है समरी इन्होंने पहले ही दे दी है. सो इसकी पहली लाइन ही थी जो मैंने कल आपको बताई थी कि अब आप ये सोच लो, ठीक है, और ये सिर्फ रिलेशन के लिए नहीं है. आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन है. अब आपने क्या बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दिन से बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है, ठीक है, ऊपर से एक एडजेक्टिव और वो और ऐड कर दिया उसको डिस्क्राइब करने के लिए, बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है, ठीक है. ऑब्वियसली आपकी वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गई और वो बार 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 प्ले होती रहेगी और आप अपना वेट करो, वो दर्द आपका बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है. फीड किसने किया था? तो जो आप मूवी डाउनलोड करते हो, जो मैं पहले भी ये बताती थी, बहुत एग्जाम्पल, आप ये सोचो कि अगर आपने टॉम एंड जेरी डाउनलोड किया है ना, तो वही प्ले होगी जब आप प्ले करोगे. जो डाउनलोड करोगे पिक्चर वही तो दिखेगी आपको अपने डेस्कटॉप पे, इजंट इट? तो जो आप मूवी डाउनलोड कर रहे हो, जिस तरह की जो भी आपने, आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ लो कि एक टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लेता है और उसी को बार बार प्ले करता रहता है और वो रिप्ले होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा. अब ये इंफॉर्मेशन जो है हमें अच्छी और बुरी चीज दोनों के मायने में याद रखनी है. अच्छी चीज अगर आपने उसको बोला that my income is constantly increasing and I'm prospering by day and night, okay, तो अब आपने ये वाली इंफॉर्मेशन डाली है that my income is constantly increasing and I am prospering by day and night. अब वो भी रिकॉर्ड हो गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है. अब बार बार रिप्ले होगा, आप देखोगे पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया जहां से पैसे आते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगता ये आ कहाँ से रहे, ठीक है. ये हालत हो जाती है कि आपको लिटरली पता नहीं होता है कि पैसे आ कहाँ से रहे, आते जाएंगे, फिर आप पूछो कि इससे उससे 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 वहां से तो नहीं आए, यहाँ से तो नहीं आए, ऐसे वहां से आ सकते हैं, यू नो, ऐसे दिन आ जाते हैं आपके, क्योंकि आपने अपने टेप रिकॉर्डर में ये इंफॉर्मेशन डाली थी. अगर आपने इंफॉर्मेशन डाली है दैट यू नो माय health is getting better and better by day and night and I'm feeling, you know, like so youthful and so energetic all the time, कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे जैसी हेल्थ होती जा रही है और मैं पूरे टाइम बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, बहुत पावर रहती है मुझ में और यू नो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी फील करती हूँ पूरे टाइम. अब आपने ये वाली इंफॉर्मेशन डाली है तो ये बार बार प्ले होती रहेगी. यहीं पे एफर्मेशंस का इफेक्ट आता है जो हम पढ़ते हैं ना बार बार. एफर्मेशंस क्या होते हैं? जो चीज आप एफर्मेट करते हो, फर्म करते हो, अफर्म, आप फर्म करते हो बार बार बोल बोल के रेपिटेशन से. इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में हम रेपिटेटिवली कुछ चीजें बोलते हैं, ठीक है. इसीलिए हम थैंक यू बोलते रहते हैं, बिकॉज जिस चीज के लिए आपने थैंक यू बोला वो आपकी जिंदगी में एम्पलीफाई होती है, ठीक है. और जो नॉर्मल एफर्मेशंस आपको करने, दैट आई एम फीलिंग गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम फीलिंग एंड लुकिंग यंगर डे बाय डे, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, एवरीथिंग वर्क्स आउट परफेक्ट फॉर मी, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, you know, my health is getting better and better by day and night, my income is getting better and better by day and night, my relationships are all 100% relationships are harmonious, you know, all of that. So ab bar my skin is getting so beautiful and I have a clean, clear, glowing skin, you know, my hair is so healthy and soft and, you know, like shiny and I'm really loving it. सो इस तरह की एफर्मेशंस जब आप बार बार बोलते हो तो समझ लो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसकी रिकॉर्डिंग होती जा रही है और आप रोज रिकॉर्ड कर रहे हो इसको. सोचो जितना बड़ा डेटा है,
अगर उसमें 200 बाइट्स हैं डेटा की, वो सारी आपने एफर्मेशंस, अच्छे अच्छे जो एफर्मेशंस हैं वो रिकॉर्ड कर रखे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और किस्मत तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से डिसाइड होती है ना, प्रोग्रामिंग जो होती है। तो अब आपने ये वाला डेटा फीड कर रखा है और आप करते जा रहे हो रोज। इट्स नॉट दैट यू डन टुडे, यू आर गोइंग टू डू दिस अगेन टुमारो एंड डे आफ्टर एंड डे आफ्टर एंड डे आफ्टर एंड एवरी डे। Okay, so now they become a pattern in the subconscious mind, और वो रिकॉर्डिंग आपकी बार बार प्ले होगी जिंदगी में। ठीक है, तो आपको जैसे अगर आपको विजन ठीक करना है, so my vision is getting better and better and better, and I'm able to read even the small sentences and words with ease and effortlessly. ठीक है, अगर आपने ये बोला है, अब सबकॉन्शियस माइंड वो सुनेगा। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल दिया था, जो लोग चाय कॉफी बहुत पीते हैं उनको, so every time I have tea, you know, I get younger and fitter. So अब आपने टी के साथ यंगर, फिटर और हेल्थ को एसोसिएट कर दिया है। सबकॉन्शियस माइंड को झूठ और सच तो पता नहीं होता, वो तो आपकी बात मान लेता है ना, और आप उसको रोज एफर्म कर रहे हो, मतलब आप उसको फर्म करते जा रहे हो। अब वो फर्म हो गया है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अब वही रिकॉर्डिंग आपकी प्ले होगी। अब आप देखोगे कि आप यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर एंड फिटर एवरी डे। यू नो, अगर आपके फिटनेस के लिए हो सकता है, अगर कोई वेट्स की जरूरत है या कुछ है, या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्लान की जरूरत है, आप देखो कि वो भी आपकी कोई सहेली दे देगी आपको कि व्हाई डोंट यू डू दिस फिटनेस रेजिम, बड़ा अच्छा है। ये सब सबकॉन्शियस के काम होते हैं। हमको बस अपने दिमाग को, जो आपके डिजायर्स, जो आपको चाहिए जिंदगी में, यू नो, फ्यूचर प्रेजेंस में रहना, जो बेंटिनो मैसारो बार बार बोलते थे। तो हमारे जो ग्रुप का नाम है सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग, वो उस किताब का नाम था जो बेंटिनो मैसारो ने लिखी थी। तो उसमें बार बार बोलते थे ना, प्लीज ट्राई एंड स्टे इन फ्यूचर प्रेजेंस, मतलब बहुत सोचो उस ब्यूटीफुल फ्यूचर के बारे में, बिकॉज आप इस वक्त वो क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में, है ना। और हमारे न्यूरॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इमेजरीज को, वर्ड्स को नहीं एब्जॉर्ब करते बहुत ज्यादा। वर्ड्स जब बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिक इमेजरीज फॉर्म होती है ना। जैसे मैं आपको बोलूंगी, अभी एक वर्ड बोलती हूँ सक्सेसफुल, अब सबके दिमाग में अलग अलग सक्सेसफुल का आया। व्हाट इज सक्सेसफुल सबका, मेरा अलग आएगा, हो सकता है किसी का आएगा BMW कार, ठीक है, किसी का आएगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज, किसी का आएगा कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत हो रही है। किसी का आएगा सक्सेसफुल का मतलब कि आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। किसी का सक्सेसफुल का आएगा कि आप जेवर से लोडेड हो, गोल्ड डायमंड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, उससे आप लोडेड हो। किसी का सक्सेसफुल का कुछ और आएगा कि आप किसी और कंट्री में घर खरीद रहे हो और उसका गृह प्रवेश कर रहे हो, ठीक है। तो सबके सक्सेसफुल के मायने अलग अलग होते हैं। किसी का आएगा बैंक बैलेंस बढ़ाना, कि मेरे पास बैंक में कभी भी 1 करोड़ से कम ना हो पैसे, ठीक है। तो किसी का ये होगा। तो सबके अलग अलग मायने होते हैं ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, बट वो इमेजरीज एकदम से आ जाएंगी ना। जैसे ही मैंने वर्ड सक्सेसफुल बोला और आप सोच रहे हो उसके बारे में, क्योंकि ठीक है सक्सेस मेरे लिए क्या है, तो आपकी इमेजेस आएंगी। अगर गोल्ड एंड डायमंड्स आएंगे तो आपको सडनली ज्वेलरी नजर आने लग जाएगी, गोल्ड के बिस्किट्स नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपका सक्सेस का मतलब होता है एक बहुत ही लग्जूरियस कार, तो आपको वो गाड़ी अपने आप इमेज में नजर आने लग जाएगी। और जो इमेजेस होते हैं ना, वर्ड्स नहीं एब्जॉर्ब होते हमारे सबकॉन्शियस में, इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो वर्ड्स के कारण इमेजेस होती हैं। अब इमेजेस एब्जॉर्ब हो गई सबकॉन्शियस माइंड में, अब वो आपकी रिप्ले होगी बहुत जल्दी। आप उस गाड़ी को पहले तो आप सड़क पे देखोगे रोज सडनली, क्योंकि आपने वो अट्रैक्ट किया है, बिकॉज यू बीन थिंकिंग अबाउट इट। सो आपने वो अट्रैक्ट किया है, आपको वो कार हर बार नजर आएगी, और जितनी बार देखो उतनी बार थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट कार, है ना, जो हमने मैजिक क्यू में किया था। तो उसको गुड फीलिंग्स दो, लव की फीलिंग्स दो और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स दो बार बार। किसी का, अगर आपने ड्रीम हाउस, सक्सेस का मतलब है कि आपको अपना घर खरीदना है, मे बी अभी तक आप घर नहीं खरीद पाए हो, आप रेंटेड अकोमोडेशन में थे, अब आपको लग रहा है नो नो आई शुड हैव माय ओन हाउस, ठीक है, और आपको बहुत सुंदर घर बनवाना है। तो उस घर की अपने आप वो इमेज आ जाएगी कि ओके मेरा घर ऐसे होगा, मेरा बाथरूम ब्लू कलर की टाइल्स होंगे, इतना सुंदर सा वॉश बेसिन होगा, यू नो, मैं उसकी फ्लोरिंग ऐसी रखना चाहती हूँ, किचन हैज टू लुक लाइक रियली नाइस एंड कलरफुल, मे बी येलो एंड रेड और समथिंग, ओके, इस तरह से। तो आपकी इमेजरीज आ जाएंगी, वो इमेजरीज सबकॉन्शियस में उतर जाती हैं, यू नो, लाइक एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और फिर वो एक्शन रिप्ले होगा आपकी जिंदगी में बार बार, ठीक है। अगर थैंक यू बोल को लगता है कि आपको अभी और थैंक यू की के पाथ पे चलना है, तो बार बार वो चीज आपके सामने आएगी, आपको नजर आने लग जाएगी, ठीक है। हर बार थैंक यू बोलो और लव फील करो उस चीज के लिए, ओके।
and then that is how things come to you. तो इसमें एग्जाम्पल दिया है क्योंकि रिलेशन के बारे में बताया, देखो पहला पैराग्राफ सबको अप्लाई करता है, किसी भी करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपका फैमिली, जो भी, ठीक है। और फिर सेकेंड पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कभी भी दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोलना है, नो गॉसिपिंग, बी वेरी वेरी सिंपल एंड बी क्लियर अबाउट इट, अवॉइड टॉकिंग इल, ठीक है, ill about anybody। तो इसमें है कि जो भी चीज आपकी कोई और आपको कर रहा है ना, वो आप उसको कर रहे हो, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। जो आप करोगे आपको वो वापस मिलेगा, जो करेगा वही भरेगा, दैट इज हाउ इट्स सेड, राइट। So anything that you leave is going to come back to you multiplied several times। So इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं, एग्जाम्पल जो बताया था that you know सामने बहुत अच्छे होते हैं और पीछे से जाके वो लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, बुरा बोलते हैं या जो भी है। ये इसमें लिखा हुआ है that आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो इसका मतलब है you are drinking poison। poison का मतलब आप मर जाओगे, राइट, मतलब बॉडी में टॉक्सिसिटी आ जाएगी, तो पूरी जिंदगी में टॉक्सिसिटी आ जाएगी। ये चीज हमको गॉसिपिंग का एक चैप्टर आया था हमारे पावर बुक में, ठीक है, रोंडा बर्न की ही थी वो किताब, उसमें पूरा चैप्टर गॉसिपिंग के बारे में था और किस तरह से वो सेलुलर लेवल पे आपको बीमार करता है और आपके दिमाग को खत्म कर देता है, और उसका इतना ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है बिकॉज हाईली टॉक्सिक एक्शन होता है, ठीक है। तो हम जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अपने सक्सेस की चरम सीमा पे पहुंचेंगे। ये आप लिख लो गोल्डन वर्ड से, जो भी आपके मायने में चरम सीमा क्या है, कि आपको ब्लिस तक पहुंचना है, आपको बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए, ठीक है, प्यार मोहब्बत में रहना है, खूब दौलत शौहरत, जो भी आपको, वो सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन साथ साथ आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बनते जा रहे हो, ठीक है। तो अब हमारे अंदर अगर देखो, लड़कियों में ना नेचुरली मैंने देखा बॉयज बहुत ज्यादा अभी ऐसे एज सच बैठ के गॉसिपिंग करते नहीं है, उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता, बट गर्ल्स एंजॉय दैट लिटिल बिट समटाइम्स, स्पेशली अगर वो उस पर्सन के बारे में हो रही है जिसको आप पसंद नहीं करते या जिसने कभी आपके लिए कुछ बुरा किया होता है, ठीक है। बट हमको क्या करना है यार, ब्लेस करना है। अगर आपको लगता है उस पर्सन में अक्ल नहीं है बिल्कुल भी और वो इस तरह इरेशनली बिहेव करता है, तो हमको मैजिक डस्ट ऑफ विजडम देनी है, उसको विजडम आ जाएगी आपकी ब्लेसिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि आपके अंदर अगर 15 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, अब आपकी वो 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने उसको ब्लेस किया है। सो रिश्ते अच्छे करना, रिश्ते बुरे करना, उसमें बहुत पावर होती है, ठीक है। सो यू हैव टू ब्लेस इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड गॉसिपिंग अबाउट दैट पर्सन, और उसमें से जॉय डिराइव करना। इट इज लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, सच नेगेटिव थॉट्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव टू यू, आपको नष्ट कर देंगे, ठीक है, वो पॉइजन लेने की तरह है। इट इज लाइक टेकिंग पॉइजन, यू आर एक्चुअली टेकिंग मेंटल पॉइजन, आप अपना दिमागी रूप से जहर पी रहे हो अगर आप किसी के बारे में पीछे से गलत बात कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी वाइटैलिटी, आपका एंथुजियाज्म, आपकी स्ट्रेंथ, आपका इंटरनल गाइडेंस, आपकी गुडविल सब चली जाएगी। जो इज्जत शोहरत जो आपके पास आ रही थी वो आपसे दूर हो जाएगी, उसमें इतनी ज्यादा पावर होती है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है ये जो नेगेटिव थॉट्स इस तरह के अगर आप करते हो, और ये सारे जो इमोशंस होते हैं ये आपके सबकॉन्शियस में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो वही एक्शन रिप्ले होगा आपका बार बार, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो रिकॉर्डिंग मशीन है, ठीक है। अब आपने रिकॉर्डिंग में इतनी गंदी चीज डाली है, ठीक है, किसी की अब्यूजेस डाली हैं, किसी के लिए इल फीलिंग्स डाली हैं, टॉक्सिक थॉट्स डाले हैं, गंदे शब्द डाले हैं, ठीक है। अब वो एक्शन रिप्ले आपकी जिंदगी में होंगे। अब आप देखना कि जिंदगी में कठिनाइयां, इसमें लिखा हुआ है इट विल कॉज यू ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड मैलिडीज इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, सेहत के मामले में, रिश्तों के मामले में, खुशियों के मामले में, रातों को नींदें आनी बंद हो जाएंगी। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने उस पर्सन के बारे में गॉसिपिंग करी थी, ठीक है, और गलत चीज बोली थी। तो इसीलिए कहते हैं कि नेवर बी जजमेंटल, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट अदर पर्सन्स लाइफ। उसकी जिंदगी में इतनी सफरिंग है ना, तभी तो उसकी जिंदगी से वो सफरिंग बाहर निकल रही है और वो आपको भी अफेक्ट कर रही है। अब आपका काम है उस सफरिंग को बढ़ाओ कि उस सफरिंग को न्यूट्रलाइज करो उसकी जिंदगी की, है ना। सो इसलिए रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग,
है ना। जब बुद्धिज्म में हम एक बोधिसत्व नेवर डिस्पैरेजिंग के बारे में पढ़ते हैं कि वो बंदा था, वो एक्चुअली शाक्यमुनि बुद्धा का अवतार था, ठीक है, और वो लोग उसको पत्थर मारते थे, उसको स्टिक्स मारते थे, कोई भी उसको मार के चला जाता था, फिर भी वो अपनी टीचिंग्स बोलता रहता था। फिर सब बोलते थे ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी टीचिंग हमको नहीं सुननी। वो फिर भी अपना काम कंटिन्यू, और वो कोई मतलब जब भी कोई उसको मारता था तो थोड़ा सा वो पेड़ के पीछे छुप जाता था, कभी कभी अपने आप को प्रोटेक्ट, वो सेल्फ प्रोटेक्ट तो डेफिनेटली करता ही था, ठीक है। और बाद में जाके वो एनलाइटन हुआ एंड ही बिकेम द बिगेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ही सेव्ड मेनी पीपल फ्रॉम ट्रबल्स एंड ऑल, है ना। सो उस तरह का वो ये सिर्फ एक मेटाफोरिकली एक वो है, यू नो, दैट हमको वी हैव टू अडॉप्ट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड that it's all right if somebody has done something bad for you। उनके पास जिंदगी में देने को सिर्फ सफरिंग है, इसीलिए वो आपको सफरिंग दे रहे हैं। तो हम उनकी जिंदगी को इल्यूमिनेट कर सकते हैं ना, तो वो इसलिए तो इसीलिए अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग में वो चीज मत रिकॉर्ड करो कि वो कितनी खराब है, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला। नो, इट्स ओके, इट शुड नॉट अफेक्ट यू, ठीक है। वो ऑफ कोर्स अफेक्ट होते हैं थोड़े से, लेकिन उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दो। थैंक यू फॉर माय परफेक्ट रिलेशनशिप्स, आई एम सो हैप्पी, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई नेवर बीन दैट विक्टिमहुड, यू नो, लाइक मुझे वो ही लगता है हम विक्टिम थोड़ी है यार, हम तो इतना क्रिएशन का प्रोसेस सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम विक्टिमहुड में कभी नहीं रहेंगे, हम विक्टिम्स नहीं है, हम तो वो हैं, हम तो सूरज की तरह लोगों को प्रकाशित करने के लिए हैं। तभी तो आपकी आंख खुलती है सुबह 6 बजे, नहीं तो नहीं खुलती। आपका मिशन है जिंदगी में, ठीक है, आपका कोई मिशन है और बहुत बड़ा मिशन है, तभी आप सुबह 6 बजे आ पाते हो, वरना लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी जब तक वो उस फेज में नहीं आते कि वो गिवर बन गए हैं। अभी तक रिसीवर थे हर चीज के लिए, अब वो गिवर बन गए हैं। तो गॉड ने उन लोगों को चुना है इस जिंदगी में कि ये लोग हैं जो मेरे एनवॉइस हैं, वो मेरा संकेत आगे लेके जा रहे हैं, मेरा काम आगे, मतलब दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड जो बोलते हैं, है ना। सो अगर आप सुबह आ रहे हो और ये टीचिंग्स ले रहे हो, तब आपका फर्ज है कि आप लोगों की दुनिया में बदलाव लेके आइए। यू डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज गॉड चूज यू, बट उसके बदले भगवान आपकी झोली में इतना कुछ देंगे कि आपको कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, है ना। तो अपने यूनिक तरीके से हम करेंगे। देखो सबका तरीका अलग होगा, मेरा अलग है, मेरे प्लेटफॉर्म्स अलग है, आपके प्लेटफॉर्म्स अलग है, आपका प्रोफेशन अलग है ना। सो इस तरह से अगर आप में से कुछ लोग जो सीए हैं वो लोगों का टैक्स बचाएंगे, वो जितना टैक्स उनका अच्छे से सेव कर उनको बताएंगे कैसे प्लानिंग होती है, उतनी उनकी जिंदगी में बरकत आएगी, उनका काम अलग है। कई लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, कई लोग एजुकेशन के बिजनेस में है, तो हर तरीके से वो दूसरों की जिंदगी को प्रकाशित कर रहे हैं। तो हम सबका यूनिक तरीका होता है, वाइल पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी हमको वैसे इल्यूमिनेट करना होता है, ठीक है। सो वील जस्ट कंटिन्यू रीडिंग फर्दर। हाँ जी प्रिया। The master key to happy relationships with others. Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye met, it shall be measured to you again. Matthew 7th page 1 to 2 verse. A study of these verses and the application of the inner truths therein contained represent the real key to harmonious relations. To judge is to think, to arrive at a mental verdict or conclusion in your mind. The thought you have about the other person is your thought because you are thinking it. Your thoughts are creative. Therefore, you actually create in your own experience what you think and feel about the other person. It is also true that the suggestion you give to another, you give to yourself because your mind is the creative medium. This is why it is said, for with what judgment ye judge, ye shall be judged. When you know this law and the way your subconscious mind works, you are careful to think, feel, and act right toward the other. These verses teach you about the emancipation of man and reveal to you the solution to your individual problems. या सो यही है जजमेंट के बारे में। सो जो भी जब भी आप किसी को जज कर रहे हो,
ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वाओ प्रिया की आवाज कितनी अच्छी है, कितनी क्लैरिटी के साथ पढ़ रही है, तो मैंने ये जजमेंट बनाया, तो ये जजमेंट मेरे दिमाग में वापस आ रहा है क्योंकि मैंने क्रिएट किया ना। तो हम लगातार क्रिएट करते हैं। वही अगर मैं किसी और के बारे में कुछ और बुरा बोलती हूँ, ठीक है, उनको जज करके कि वो बहुत शूट बिहेवियर है उसका, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी आवाज कितनी बेकार है, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो ये मेरा जजमेंट है मेरी जिंदगी के बारे में। ठीक है, सो इस तरह से आप जो होते हो आपको सब कुछ वैसा ही दिखता है ना। जैसे रॉबिन शर्मा बोलते हैं दैट यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी द वर्ल्ड एज यू आर। तो आप जैसे होते हो ना आपको सब वैसे ही नजर आते हैं, अगर आप अच्छे होते हो ना। तो इसीलिए हमने सुना है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, राइट। सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, आप जो ब्यूटी अंदर कैरी कर रहे हो वैसे ही आपको बाहर नजर आएगा। आप लाल कलर का चश्मा लगा के घूम रहे हो, आपको सब कुछ लाल टिंज में ही नजर आएगा। ठीक है, आप आसमान भी देखोगे तो आपको लाल लाल नजर आएगा जबकि नीला आसमान होता है। ठीक है, आप हरी घास भी देखोगे तो वो आपको रेड कलर में मिक्स होके नजर आएगी, वो हरी नहीं नजर आएगी क्योंकि चश्मा ही आपका लाल है ना। तो अपना चश्मा ही बदल लो यार, मतलब अपना चश्मा बदल लो, आप हटा दो गॉसिप एंड क्रिटिसिज्म वहां से। ठीक है, मजे में रहो। मुझसे कोई बात भी करता है, अगर माहौल थोड़ा ऐसा हैवी होता जाता है, मैं एकदम से पूछती हूँ यार नेटफ्लिक्स पे कौन सी बढ़िया सी मूवी आई है, मुझे भी बताओ, मुझे देखना है, टॉपिक चेंज। और जस्ट गेट अप, ओ आई गॉट अ कॉल, समटाइम्स आई डोंट गेट अ कॉल, ओके आई जस्ट गेट अप एंड आई से दैट मेरी कॉल आई है, 1 सेकेंड में बात करके आ रही हूँ। And this is how you can avoid, you don't want to be party to it and just keep listening, because अगर आपके कान भी सुन रहे हैं ना तो अंदर आपके सारे सेंसेस में वो गंदी सी गॉसिपिंग और बिचिंग जा रही है किसी के बारे में। ठीक है, तो इसलिए avoid doing that, avoid using words of negative connotation किसी के लिए भी। अपना ही चश्मा बदल लो यही, क्योंकि वो हमारे चश्मे की प्रॉब्लम है। जो मैंने कल आपको एग्जांपल बताया ना कि देखो एक शीला है, शीला बहुत जो जैसी भी है, शीला एक इंसान है, मुझे वो बहुत बुरी लगती है, मुझे उसकी आवाज नहीं पसंद है और मुझे उसका बिहेवियर भी नहीं पसंद है। ठीक है, दूसरा पर्सन है वो शीला का बेस्ट फ्रेंड है, उसको तो वो शीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ठीक है, तीसरी पर्सन है वो कहती है कि हाँ शीला की ना यही आदत है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कोई उसका पॉजिटिव देखने को तैयार ही नहीं है। तो तीनों का अपना व्यू पॉइंट अलग अलग है उसकी जिंदगी में। जो ये 3 लोग हैं, एक उसे बहुत प्यार करता है, एक वो कहता है कि नहीं उसकी यही आदतें हैं जो मुझको नहीं पसंद है, और एक उसको हेट कर रहा है। ठीक है, तो अब शीला तो सेम है, वो तो अच्छी और बुरी नहीं है क्योंकि उसकी जिंदगी में, और उसके माँ बाप जो उसे बहुत प्यार करते हैं, तो उसके माँ बाप है, उसका बॉयफ्रेंड है जो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जो बाकी के 2 फ्रेंड्स हैं उनको उसमें बुराइयां नजर आती है। तो वो बुराइयां उसमें नहीं है, वो बुराइयां हमारी होती है। जैसे कई बार मैं आपको बोलती भी हूँ ना कि ये सेंटेंस मैंने पढ़ा है तो मैं बोलती हूँ, बट वो एक्चुअली मुझे अप्लाई करने की जरूरत होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप खुद बहुत लो फील कर रहे होते हो ना, इमिडिएटली किसी की हेल्प करो, बिकॉज उसकी हेल्प में जो शब्द आपसे निकलेंगे ना वो एक्चुअली आपका गाइडेंस होता है, मतलब वो आपको करने की जरूरत है। तो कई बार मैं आपको बोलती हूँ तो मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि यस दिस इज मेंट फॉर मी, और मैं आपको बोलती भी हूँ कि ये मेरे लिए इस वक्त अभी मुझे ये करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हम सब इंसान ही है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं दैट वी आर ऑल गेटिंग बेटर इन मेकिंग, अभी भी हम कर ही रहे हैं ना, मैजिक बुक कहाँ छोड़ पा रहे हैं, अभी भी तो ग्रेटिट्यूड वे ऑफ लाइफ नहीं बना है। कोशिश है, मे बी हम 60% रास्ता हमने माप लिया है। ठीक है, अभी भी तो 40% बचा ही है ना हमारा, कुछ लोगों के लिए 80% बचा हुआ है, कुछ लोगों के लिए 90% बचा हुआ है। बट मोस्टली अगर कंसिस्टेंटली रोज अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा ग्रेटिट्यूड के मोमेंटम में रहने लगे हैं। ठीक है, काफी कुछ रहने लगे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन भी लोग मुझसे पूछते हैं मेरे साथ ये हो रहा है मैं इसको क्या करूं, इसका मतलब है ग्रेटिट्यूड सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन गया है और आप इस प्रॉब्लम को उसे डील करने को रेडी हो, है ना। जैसे कल श्वेता ने शेयर किया था ग्रुप पे, आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने उनका एक्सपीरियंस पढ़ा कि नहीं, उनका एक्सपीरियंस बहुत सीरियस एक्सपीरियंस था, अगर नहीं पढ़ा है तो स्क्रॉल अप करके ऊपर जाके पढ़ना। ठीक है, बहुत सीरियस वाला था, कुछ भी हो सकता था जॉब पे, जबकि कोई शी वॉज उनकी गलती नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स मिस हो गए, चोरी हो गए, जो भी, वो भी लॉकर से। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो दैट कुड हैव, शी कुड हैव लॉस्ट इट, आई मीन कुड हैव क्या मतलब, इट्स अ स्ट्रेट अवे दिस थिंग। बट कैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड पे लीन करके सारी वो प्रैक्टिसेस करी, वो भी उन्होंने लिखी है उस एक्सपीरियंस में।
ठीक है। कल एक्चुअली बहुत सारे बड़ी स्वीट बर्थडे मैसेजेस थे, तो हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस लॉस्ट हो गया हो, बट पढ़ना, वो गई वापस ग्रैटिट्यूड को एंड देन शी काइंड ऑफ टर्न्ड अराउंड द होल सिचुएशन बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। और शी वाज वेरी क्लियर, कहती है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी में अगर किसी के साथ ये होता है, स्ट्रेट अवे यू हैव लॉस्ट द जॉब और कोर्ट केस और व्हाटएवर, ठीक है, कुछ भी नहीं, स्मूथ सेल, वापस वो कैसे आ गई, बिल्कुल जैसे फिश बहती है ना पानी में, बिल्कुल स्मूथली, है ना, उस तरह वो बह के किनारे पे पहुंच गई थी और पूरी प्रॉब्लम, एवरीथिंग गॉट इवेटेड। इट इज अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस. So this is how life becomes, make it easy because easy does it. No point complicating and thinking negative. उस वक्त लगता है नेगेटिव सोचने लग जाते हैं जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई और तरीका ही नहीं है उससे निकलने का, है ना. अगर आपको क्विकेस्ट, श्योरेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे फॉरवर्ड चाहिए होता है और परफेक्ट रेजोल्यूशन चाहिए होता है, तो बस थैंक यू वाला रास्ता है. तो इसीलिए अपनी जिंदगी में वो सारी सिचुएशंस एंड चीजें अवॉइड करो विच आर ड्राउनिंग यू एंड टॉक्सिफाइंग यू सो मच. वी डोंट नीड टू, डोंट गिव. देखो गलतियां मुंह से तो निकलेंगी, है ना, डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए कई बार निकलती हैं. अगर आप गंदा घर देख लेते हो, अगर आपको लगता है मेरे ड्राइंग रूम में इतनी गंदगी, अभी भी आज डस्टिंग ठीक से नहीं हुई, है ना, एकदम से नेगेटिव चीज निकल जाएगा. एक होता है अपनी डोमेस्टिक हेल्पर को बुला के उससे बात करना और समझाना कि देखो अच्छे से करो, कोई बात नहीं, आज ये हो गया, कल से अच्छे से डस्टिंग करना, और मुझे गंदगी नजर आ रही है, थोड़ा हाइजीन का भी देखना पड़ता है, ठीक है. एक है कि वो है भी नहीं सामने और पीछे से उसके लिए बोले जा रहे हैं, अरे बकवास है, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, उसके हाथ में इतनी गंदगी है, टाइम, मतलब और 4-5 चीजें तड़का लगा के. अब क्या है, आपने अपने दिमाग को टॉक्सिक कर लिया है. अब आप उसका इफेक्ट देखोगे, आपको जो दर्द हो रही होगी, लोअर बैक पेन शुरू हो जाएगा, आपके जो अच्छा वाला रिश्ता है उस पर्सन से आपकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा. ये इनविजिबल रेल्म में काम करती है. ये जो वाइब्रेशंस होती है ना, ये विजिबल नहीं होती है, इनविजिबल रेल्म से काम करेंगी और एक का असर दूसरे पे आता है. जो हमने पावर बुक में पढ़ा था, आपने किसी बच्चे को बिस्किट दिया है ना, आपके ऑफिस में बहुत टाइम पुराना में भी आपका अप्रेजल नहीं हो रहा था, वो हो जाएगा. अब आपको पता भी नहीं था कि एक लाल बत्ती पे अब आप रुके, ट्रैफिक सिग्नल पे, वहां पे एक बच्चा बैग करने के लिए आया, आपके हाथ में, मतलब आपके बैग में चॉकलेट्स या टॉफीज थी, या आपके कुछ था, बिस्किट का पैकेट पड़ा था, ठीक है, और उस बच्चे को आपने विंडो रोल डाउन करके अपना एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, या जो भी चॉकलेट थी आपने वो दे दिया, या आपके पास एक आम पड़ा था, मे बी यू कैरी मैंगोज टू वर्क. I do, so I could relate to mango. I always carry 2 mangoes to work. So फिर अगर आपने वो मैंगो निकाल के उसको दे दिया, अब आपके सालों का काम जो अटका हुआ था ना, सपोज बैंक का या कहीं का भी, उसमें आपको उसी दिन रेजोल्यूशन आ जाएगा, उसका कुछ मतलब वो हो जाएगा. ऐसे कर्मस काम करते हैं. मेंटली अगर आपने किसी को लाइक किसी भी रूप में किसी की सेवा की है, you will see the effect of it happening in your life because everything is happening in invisible realm. ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना, हाउ में पढ़ो ही मत, बस हो जाता है जिंदगी में. ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, हम लोगों को जज नहीं करेंगे. ठीक है, सो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है that when you know this law and the way your subconscious mind works, you are careful to think. So please be, ये हमारे लिए मैसेज है और स्ट्रॉन्ग मैसेज है, that you will be careful to think, feel. नेगेटिव फील भी नहीं करना है. ऐसा नहीं कि ठीक है, नहीं मैं शब्द नहीं निकालूंगी इसके लिए, नो, आई एम वर्किंग एट इट, आई एम वर्किंग. नो, यू डोंट हैव टू फील आल्सो नेगेटिव. यू हैव टू ब्लेस दैट पर्सन कि उसकी जिंदगी में खुशियां भर जाए, ताकि अगली बार से वो खुशी अपनी जिंदगी से निकाल के सबको दे, है ना. तो आप भर सकते हो उसकी जिंदगी में भी खुशियां. सो you have to be careful to think, feel and act right towards the other. ठीक है, so this is how the evolution of the humankind is going to happen, and because all of you are the chosen one, जितने भी आप अभी 100 and something है, ठीक है, ये आप chosen ones हो और आपको अपना रोल बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा ये वाला, because आपको गॉड ने चूज किया है. हाँ जी. Oh, sorry. I think we are done. Sorry, I think we are done. So thank you so much, Priya, for reading. Arpit and Archit's mama. Yeah. Bless mama and bless kids. Okay, thank you so much for reading. And okay, we have Sunaina's hand raised. So please share. Hanji. Yeah, hi. Hi, good morning. Good morning. मेरी ना like एक विक्ट्री और एक शेयरिंग है. I mean, पहले अपनी टी शर्ट का कोड सबको पढ़ के सुनाओ.
अच्छा वो जो तुम्हें भेजा था, हाँ, टी शर्ट तो है, मैंने भी मंगवाई है अपने लिए इनसे। एक सेकेंड, वो दूसरे फोन में, पढ़ो एक पढ़ो, it will bring a joy to you and at least it will, just hearing it will make a pattern in the subconscious mind. फिर मुझे लगता है 200 टी शर्ट्स ऑर्डर कर देती हूँ। कर ही दो यार, इन सब के लिए तो। It's like, but you always say, if you remember, you always say this thing. दीप्ति म्यूट होगी? नेटवर्क इशू हो सकता है कोई। ऑन है। अच्छा, okay. It's like keep going until your bank account looks like your phone number. This is so beautiful, really. So I remember दीप्ति हमेशा ये बात बोलती थी हमेशा कि जब तक मेरे दीप्ति मेंबर की मेरा वो यही वाला कि मेरा बैंक अकाउंट मेरे फोन नंबर जैसे, तो मैंने कल जैसी टी शर्ट देखी ना, आई जस्ट मेरे दिमाग में कल सारा टाइम यही दिमाग में, तो मैं तो इसका बर्थडे था तो मैंने बोला मैं भी आज बहुत ही खुश हूँ, चलो शॉपिंग पे चलते तो म्यूट पे हो तुम? नहीं, वो मैं कह रही थी कि जब अपने फोन नंबर जितना बैंक अकाउंट नहीं हो जाए ना, तब तक रुकना मत जिंदगी में सुबह 6 बजे उठना। तो मैंने कल ये जैसे ही देखी तो मैंने फटाफट से क्लिक किया और इसको भेजा। तो आज मैं खरीदने जा रही हूँ, किसी और को भी चाहिए तो बता देना प्लीज। मैम आई वांट वन। He wants अच्छा अच्छा, you Even share I the want link one. with us, है ना? You share the I link. too. We all want one. Yes, yes. अच्छा, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, तो मेरी शेयरिंग ये है कि एक तो बहुत सालों के बाद 17 के बाद अभी कितने जो जितने भी साल हो गए, मेरा फर्स्ट रॉयल्टी चेक आया बुक्स का, सो विच इज अमेजिंग। मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग है, वो जो एक फाइनेंशियल होता है वो वाली फीलिंग है। एंड सेकेंडली जो अभी दीप्ति बात कर रही थी कि आप अगर किसी को कुछ प्लेस करते हो, कुछ देते हो, तो मैं अभी 4-5 दिन दिल्ली थी, तो हम लोग द ललित्स पे रुके हुए थे। तो बीच से क्या हुआ कि हमने कुछ स्टोन्स खरीदे, तो वहां एक बूढ़े से अंकल बैठे हुए थे, तो मैंने सीक्रेटिवली, मतलब अभी घर में भी नहीं किसी को पता, आप लोगों को इसलिए बता रही बिकॉज शेयर करना है, आई गेव हिम सम मनी कि, और ये बोला कि प्लीज बच्चों के लिए कुछ लेके जाना। अच्छा मतलब बहुत ब्लेस किया, मैंने कहा अंकल कुछ भी अच्छे फ्रूट जो आजकल आए हुए हैं, कुछ जो भी आपको ठीक लगता है लेके जाना। ये मैंने दीप्ति से सीखा, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। देती मैं पहले भी थी, बट वो ब्लेस करना और स्पेसिफिकली बोल के करना, तो बहुत खुश हुए वो। और हम ललित में रुके एंड हमें एक रूम जो अलॉट किया था, हम रुके, थोड़ा सा मुझे वो क्लास्ट्रोफोबिक सा लगा कि थोड़ा छोटा है, बट वो अवेलेबिलिटी वाइज वही था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कहीं और चले जाते हैं हम लोग। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने मुझे लाइक द सेम प्राइस पे दे गिवन मी अ वेरी बिग रूम एंड दे चार्ज द सेम। सो मैं 2 दिन वहां हम सब लोग रुके। वेंसडे को ट्यूसडे को मैं गुड़गांव चली गई, सोचा वहां ले लेते हैं रूम। उस दिन कुछ कोई G20 का इमरजेंसी मीटिंग आ गया, द होल गुड़गांव वाज बुक्ड। रात को 12 बजे ललित फिर फोन किया कि कोई रूम अवेलेबल है, दे सेड मैम इवन वी नीड टू चेक। तो फिर फोन आता है आ जाइए, एक रूम अवेलेबल है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें एग्जीक्यूटिव स्वीट मिला विद द सेम प्राइस and they didn't charge anything extra, and we have been treated because उनको ललित is a place जहाँ पे LGBT community को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। सारा वहाँ पे स्टाफ, सारे एम्प्लॉयज ही वही हैं, they are so happy faces। so मैं वही सोच रही थी कि ये वही चीज है जो मेरे पास कितने टाइम मल्टीप्लाई मतलब घूम के मेरे पास आई है। so this is how you know bless your money and this thing. So that was my sharing victory, आप कुछ भी कह सकते हैं। Get used to freebies and frills. It will keep coming. Thank you, thank Yeah, thank you so much for sharing and for the t-shirt tag. you. उस पर्सन का नंबर ले लेना, सीरियसली उसको बोलना है कि आप जो ये टी शर्ट्स, चाहे वो रोड साइड टी शर्ट वाले हो, कोई भी वेंडर, उसे कहना कि ये वाली टी शर्ट है ना, आप इसको कुरियर करने का पूरे इंडिया में, और हम सब उनका नंबर लेके हमको बता देना, हम सब अपना अपना ऑर्डर करके मंगवा लेंगे।
हाँ हाँ पक्का। मैं आज मैंने उसको मैनेजर को तो रात को ही 11 बजे मैसेज कर दिया था कि प्लीज 2 टी-शर्ट साइड में रख लेना, क्योंकि मैं करके पिक करूंगी। नहीं, उनका नंबर लेके आना, उनको बोलना ये वाली टी हाँ शर्ट पूरे इंडिया में कुरियर करनी है, अहमदाबाद एंड बॉम्बे एंड बैंगलोर एंड चेन्नई एंड रुद्रपुर एंड एवरीवेयर। या मैं जाऊंगी एक हाथ और जयपुर करना। टू मैम, जयपुर। हाँ बिल्कुल, जयपुर जयपुर तो जरूर से आएगी, जयपुर आपकी फोटो देख के तुसी ग्रेट हो। मैम एड्रेस दे दो, आप स्टोर ही कर देना हम लोग। एक्चुअली मैम मैं अभी अपने वेंडर से पता कर लूंगी कि उनके पास भी हुआ तो मैंने, क्योंकि अभी ये काम किया है ना इन सब चीजों का, तो शायद उनके पास हाँ भी होगी नहीं, वो करनी होगी। मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, मतलब हाँ है ना। नहीं, वो लोग करते हैं ग्रेटिट्यूड की, ऑलरेडी मैंने वहां पर देखी थी। अच्छा तो ठीक है, भी वेरी होगी। गुड, जरूर या से वैसे कहना ये और फिर बताना। ब्रांड्स बार्गेन का टी-शर्ट है, कई कई जगह पे ब्रांड्स बार्गेन होता है लाइक। सुनैना दी अच्छा मुझे ना उसका फोटोग्राफ भेज देना बस, तो आई विल गेट इट डन। हाँ ठीक है जी, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ सरोज जी प्लीज शेयर। हेलो। हाँ जी। मेरी एक अच्छी वाली शेयरिंग है मैम। हाँ क्या परसों जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे को बहुत लो बड़ा फील ऑर्डर हो रहा मिला। था, फिर वो किया था ना, उसके बाद आप सोचोगे कि कल एक मेरी फ्रेंड का फोन आ जाता है, वही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में हूँ कि मैं किस तरह से उसको वो करूँ ना। तो आप सोचो कि कोई एक मेरी फ्रेंड बहुत पहले जो ये हमारी सोसाइटी छोड़ के चली गई थी 9 साल पहले, उसका कल मुझे मैसेज आता है कि कुछ बिजनेस में नया करते हैं, कि खाली बेडशीट्स में तो आप स्टक हो जाओगे, कुछ बड़ा करते हैं कुछ। मतलब उसके इतने अच्छे आइडियाज थे और इतना अच्छा वो कर रही थी कि मुझे लग रहा है कि मतलब अब बहुत अच्छा होगा। तो वो मुझे इतना एक्सपेक्टिंग नहीं था। और कुछ एक मेरी फ्रेंड है वो यूएस जा रही, उसने मुझे बोला कि ठीक है कुछ बेडशीट्स मुझे देना, मैं वहां जाके वो करूंगी, उसके लिए फिर हम कनेक्शन बनाएंगे। तो मैं ये चीज देख रही हूँ कि ब्लेसिंग कैसे आ रही हैं इतनी जल्दी जल्दी। हाँ नहीं, हाँ वो यूनिवर्स सब। विल सेंड यू एंजल्स, कहते हैं ना कि यूनिवर्स, पीपल, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस इस तरह से लाइन अप होंगे जो आपको आपकी मंजिल तक, जो भी आपने ड्रीम गोल में लिखा है ना अपना, जो ड्रीम लिस्ट में, वो वहां तक लेके जाएंगे। तो अपने आप यूनिवर्स तो खुद, द फोर्सेस डोंट कम देमसेल्व्स ना, दे सेंड पीपल। हाँ थैंक यू सो मच मैम। ये मैं इस ग्रुप से, और एक एंजिल है आपके ग्रुप में दीपिका भल्ला, हाँ उन्होंने मुझे आपके, मैं बहुत रोती थी, मैंने आपको बताया कि जब मेरे हस्बैंड की 4 अप्रैल को डेथ हुई तो मैं बहुत ज्यादा रोया करती थी और मैं बहुत लो फील करती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस ग्रुप से जुड़ो तो आपकी लाइफ थोड़ी चेंज होगी, देखना। तो मैं एक बारी फिर उनको भी और आप सबको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। कम्फर्ट में मैं फेस करूंगी, पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक थैंक यू यू। एंड विश यू अ वेरी अबंडेंट लाइफ। और थोड़ी चेंज नहीं होगी, आप दीपिका भल्ला को बोलना, आपको बोले कि आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्रीज टर्न अराउंड हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू थोड़ी सो नहीं, मच। थोड़ी तो चेंज पहले ही हो गई थी। मई में ही हो गई थी। अभी हाँ तो वो बहुत मैं ग्रुप ज्यादा से और जुड़ी, ज्यादा वो तो होती चेंज हुई जाएगी। है, पर मैं देखती हूँ कि छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती है और मैं उसी ग्रेटिट्यूड से जुड़ती हूँ तो ऐसे सॉल्व होता है, मतलब मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपने आप को बार बार बोला भी कीजिए दैट एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। हाँ ये थैंक अब्राहम यू हिक्स का सेंटेंस है, उन्होंने ऐसा सिखाया है। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। या थैंक यू। सुनिधि, Hello, यस ma'am. प्लीज प्लीज शेयर। I इतना also लेट कैसे? Hi, ma'am. Hi, all the हाय ma'ams and all the हाय। sirs here. तो Hi. क्या करती हो? I had a word with ma'am yesterday, not इतना yesterday, a few सरोजी days प्लीज म्यूट कर ago. लीजिए। बहुत लेट है, हाँ सर, ठीक ठीक है, थैंक यू। सरोजी 7 प्लीज। बज गया। हाँ थैंक यू। हाँ जी। And I have a few 7:15 बज गया sharings आज। which are old, but I've been told to share them with you. So, so I recently shifted to the US for pursuing my master's degree in data science, and it had been a whole roller coaster ride. So I'll take you to the 20th of May, where I didn't even have my visa for anything, and I didn't know कि सब कैसे होगा, सब लोग tension में, मैं भी. I had, like, my classes started on the 12th of June. I don't know, I don't have my visa till then. I don't know क्या होगा, कैसे होगा. And I'm trying कि something works out. 25th of May, all of a sudden, I find the visa appointment for the 1st of June.
And I was like, okay, let's do it. Then I heard, ठीक है, visa reject भी होता है, ये भी एक prospect है. I was like, मुझे इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है. And मैम ने बोला है, हाँ सोचते ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा. I'll do my best, whatever time I have, I'll prepare. That's it. I'll not think at all. And then 1st of June, I'm in this queue where visas are being granted. There are 2 people in front of me. मेरे आंखों के सामने, both of those visas get rejected, student visas. And I'm like, maybe today is like a dicey day. I have to travel on the 9th. I don't know how things are going to happen. But then I said, thank you, universe, for the magnificent outcome of this meeting. Thank you for the magnificent outcome of this interview. And I go in front of the visa interview person, and then I say, good morning, ma'am. And she started smiling. She had a poker face before I was there because she rejected 2 visas. And then she was happy, and she happily says, your visa's been approved, kid. And I go from there. Then I don't have like my tickets yet because it made no sense if the visa got rejected and tickets don't happen. Then I get a ticket, which was not very expensive. It was an Air India ticket, and it was directly from Delhi to Dallas, where I had to land. And that thing happened on its own. Then the other thing in my mind was, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मेरे को सामान पैक करना है, मुझे ये नहीं पता मैं वहां जाऊंगी कैसे, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मम्मा नहीं, पापा नहीं, सामान उठाऊंगी कैसे, करूंगी कैसे. And then this girl who was subletting her apartment to me, वो अपने आप मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने आई, and 2 hours drive, she gave it to me for free. I didn't have to do anything. And there was this person who held my bags and kept it in the car also. I didn't have to do anything on my own, anything at all. And it was a whole ruckus in my mind कि मैं कैसे ही क्या ही करूंगी. Then comes this day, which is the 1st of July. I need to shift the apartment because I'm shifting to college housing. And I'm thinking, अब मेरे पास इतना सारा सामान है, अब कैसे उठा के लेके जाऊंगी. And then suddenly the same girl came in with her 2 brothers, and both of them are very nice to me, and they held everything, including a table and a mattress. And I again don't have to hold anything, and everything gets shifted like magic. And I don't know, but I've been really lucky. And I think Deepti ma'am is responsible for all of this magic and all of this luck. Yeah, so that's my sharing. Wow, Sunidhi. Wow, Sunidhi, wish you the best life Wow. there in University of Virginia, and may you bring a lot of proud to it. So today we'll have to actually log out. Have some. Great, And thank Sunidhi. you so much for sharing. We've overshot time. I'm sure it's getting late for everybody. And we'll take the remaining sharings tomorrow from Deepak and Deepa. So thank you so And much. me too. Bye-bye. Thank you. Have a Have good a day. beautiful day. Bye.